पहले हम ये प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट है वो ख़त्म करते हैं अपना। और उसके बाद आपको पाइथन पाइथन पांडास से प्रोजेक्ट कैसे बनाना है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लें। और उसके बाद फिर जो है हम फिर आपकी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे। अभी हम अपना, जैसे कि सी एस वालों का कोर्स ख़त्म हो चुका है। अब जो है मैं आप दोनों का ही जो यूनिट्स होंगी वो कॉमन होंगी। इसके बाद पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन के बाद दो दो यूनिट्स हैं आपकी, नेटवर्किंग एंड यू नो साइबर एथिक्स। ये दोनों की एक ही हैं, तो फिर मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो है दोनों के लिए अलग अलग प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ते हैं। तो जैसे ही ये हमारी प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगी और आपका प्रोजेक्ट कैसे बनना है जो कि 8 मार्क्स का होगा, तो वो चीज़ हम एक बार और डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है। सो मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि पांडाज में जो आपको एक सहूलियत मिलती है वो ये मिलती है कि वहाँ पर जो जैसे वहाँ इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती हैं। इंडेक्स यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट होंगी, लेकिन इसके साथ साथ आप यहाँ पर कॉलम्स को भी इंडेक्स दे सकते हैं और वो इंडेक्स कस्टमाइज हो सकते हैं। और नमपाई एरे से भी उसको इंडेक्स दी जा सकती है, बिकॉज नमपाई के अंदर जो फंक्शन है अरेंज, दैट विल create the indexes right from 0 up till जो भी उसकी लेंथ है। तो कॉलम जो है इस पे एक नया आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी डबल डायमेंशनल एरे होगा या डेटा फ्रेम होगा, इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स दोनों ही कस्टमाइज किए जा सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो है 0 एंड 1 2 3 इस तरह से ही चलेगा। डी टाइप इज बेसिकली वही, इफ यू आर यूजिंग नंबर्स तो डेटा टाइप उसका नंबर्स होगा। अगर आप स्ट्रिंग्स यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट टाइप होगा। कॉपी जो है जो लास्ट का पैरामीटर है, कॉपी विच इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स, तो कॉपी की जरूरत पड़ती नहीं है। इन केस अगर कॉपी की जरूरत डुप्लीकेट करने की जरूरत पड़ती है तो यू कैन यूज कॉपी। ओके। सो there is an example where we are using pandas, importing pandas, and its alias name we are taking as PD. And over here, the the frame which we are going to create having two lists. The first list is 10 comma 20 and second list is 30 comma 40. So obviously this is two dimensional array. इसके अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि there are two rows and two columns, 10 and 30 and 20 and 40. So this should be the format in which this data frame appears. So यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है, और वो भी nested है, because list within the list is known as the nested list. And using this double dimensional array, we'll be able to create the data frame. So here pd dot data frame 10 comma 20 30 comma 40. So 10 30 is the first column and 20 40 is the second column, and 10 20 is the first row and 30 40 is the second row. But pandas gives the index starting from 0 1 2 3 and so on for columns as well as for the rows. And second thing about data frame, that you can use list as data of data frame,
and you can also use tuples as the values of the data frame. And dictionary we have already used in series, in which keys will be behaving like uh, the index, and the values will behave like the data or series. The dictionary can also be used with data frame, no issue. So we can use all, whether this is list, tuple, or the dictionary. So if you do not mention your customized index for rows and columns, data frame will take 0, 1, 2, 3, and so on for index मतलब rows, and 0, 1, 2, 3 for columns. But for rows you will have to, if you want to customize row index and column index, then you will have to use columns parameter, and for rows you will have to use index parameter. बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो है आपके ये है 0 and 1, 0 and 1. ओके, Yes, sir. चलो नेक्स्ट चलते हैं. And now see in this example, again pandas is imported as pd. Pd is alias name again, and we have taken or selected the data which is in the form of double dimensional array or nested list. So we have two lists inside one list. So 10, 20, 30, 40, there are two lists. And in the next line, CL, we have taken a column index C1 and C2. But we have not decided index for rows, that is index. So if I d is equal to pd dot data frame, and what is dt? dt is this data. So data is there. डेटा एंड इंडेक्स मैंने यूज नहीं किया है, मतलब रोज के लिए हमने कोई भी इंडेक्स कस्टमाइज नहीं किया है, बट कॉलम्स के लिए हमने इंडेक्स कस्टमाइज कर दिए है. सो इंडेक्स इंस्टेड ऑफ 0 and 1, indexes are C1 and C2. So see here. So this is C1 and C2, and this is called non-default column labels. Customize column labels or customize index for column. एंड बट रोज के लिए हमारे डिफॉल्ट जो इंडेक्स है वही रहेंगे 0 and 1. तो ये आप डेटा फ्रेम इस तरह से बना सकते हैं, और हम डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्स को भी कस्टमाइज कर पाते हैं. वो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कॉलम्स C1 and C2 and rows R1 and R2. So when you create the data frame, D is equal to PD dot data frame dt comma columns is equal to column customized index, and for row index is RW, which is the list of R1 and R2, and CL is the list of C1 and C2. So this way you'll be able to create data frame with column customized indexes of columns and rows as well. Okay, next. If at all you want to create the data frame using the dictionary, you'll be able to create dictionary in this way. So name is a list, and MKS is another list, and using these two lists we have created a dictionary. And index means rows are named as 1, 2, 3, 4,
and columns, and since you know they are, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इसके अंदर जो कीज हैं वो इंडेक्स तरह वर्क करती हैं, तो यहाँ पर हमने जो है रोज की जो इंडेक्स दे दी है 1 2 3 4, एंड कॉलम्स की भी हम दे सकते हैं. बट सी हियर, name, ये this is the data item, this is the data, and marks is again the data. So we have two columns in data frames. One is list of the names and other is corresponding marks of the students, Amy, Raj, Jay and Kaj. ये 4 आइटम्स हैं हमारे पास एंड 4 ही उनके डेटा आइटम्स हैं. तो इसके अंदर नेम एंड MKS will behave like the column names, and index we are going to give here of our own choice, that is 1 2 3 4, and if you omit this will become 0 1 2 3. अगर आप इसको नहीं देते हैं then default indexes will be taken as 0 1 2 3. लेकिन अगर आपने यहाँ दे दी है तो क्योंकि इसके अंदर कॉलम्स तो अपने आप आ जाएंगे, जितनी भी लिस्ट है वो आप कॉलम्स की तरह, अगर आप एक लिस्ट और ले लेते हैं तो वो भी एक कॉलम बन जाएगा. तो यहाँ पर जो रोज हैं या तो आप डिफॉल्ट रोज इंडेक्स ले लीजिए या फिर आप कस्टमाइज ले सकते हैं. सो हियर आई एम गोइंग टू यूज ए फंक्शन टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द डेटा आइटम्स. The elements or of marks will be added, and the sum will be divided by number of elements. So here this data frame is created and I have printed the data frame STU नाम से. So this is your data frame, right? Now average marks we are going to calculate. So average marks means sum of the marks and divided by number of items this sum is made of. So is 2 marks means this is the data frame. Is 2 marks is the data frame, and this is the column I am going to sum up, and for which I have to work out the mean. And remember the numerical, this is a numerical method. mean मतलब जितनी values हैं उनका mean निकालना. So this can only be applied on the numbers or the values, not on the words. So the mean of words is what? वर्ड्स का तो कोई मीन नहीं होगा, तो मीन निकालने के लिए हमें वही कॉलम यूज करना पड़ेगा जिसमें मीन निकल सकता है. सो वी हैव टेकन MKS कॉलम, एंड इसको हमने जैसे ही आपने ये फंक्शन अप्लाई किया तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, ऑल द एलिमेंट्स विल बी एडेड. 10 and 9 19 and 7 26 and 8 34 divided by 4, so it will become 8.5. So this is the average marks which we have printed here through this. तो हम एक बार को काम करते जाते हैं, साथ साथ इसको प्रैक्टिकल भी करते जाते हैं, केवल प्रेजेंटेशन से काम चलने वाला नहीं है. सो कमिंग टू कमांड, आप लोगों ने अपने बैंक से पैसे निकाल लिए? बैंक से कैश निकाल लिया आप लोगों ने? तो आप क्या समझते हैं कि दिन ऐसे ही चलते रहेंगे? चाइना मान नहीं रहा है, चाइना मान नहीं रहा है, और ये किसी भी गिवन डे ये शुरू हो सकता है. चाइना से वॉर हो सकता है बिकॉज ओके. पॉकेट तो बैंक कौन सा है? इसमें हाँ? सेंड डालना पड़ेगा. सॉरी बोलो, कुछ कह रहे थे क्या? सर बैंक इससे कैसे रिलेटेड है? सर आप हाँ हमें लगा आप हमसे बोल रहे हो.
हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ। बैंक कैसे रिलेटेड है ये बताता हूँ कि जब कहीं टेंशन होती है, जब वॉर वगैरह जैसी सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पर जो कंट्री को पैसा चाहिए होता है, तो उस टाइम पर जो बैंक से जो विड्रॉल्स हैं वो स्टॉप कर दिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यस। तो ऐसा ना हो कि उधर वो वॉर शुरू हो जाए और आपके पास इन हैंड कैश ना हो, इसलिए। कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि चाइना किस करवट बैठता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कल मेरे पास भी ये मैसेज आया था कि भैया जिसके पास जो कैश वगैरह अगर बैंक में पड़ा हुआ है तो निकाल लीजिए, कि हो सकता है कुछ टाइम में ये बंद हो जाए। और फिर आप तो आर्मी वाले हो, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं। अब क्या करना है इसको? ओ ये जो झूमता सावन है, बस नेम ऑफ दिस डेटा फ्रेम, वन रीनेम।
pandas as pt, and data is name and marks. It's a good name, na? Rajkaj. And the column index CL is equal to df is equal to dt dot data frame dt comma index is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4, then df print the average is comma df mks dot mean. MDF and df mks dot mean. This is mean and सम भी देख लेते हैं df mks. So 53 divided by 4.
This is 13.25. So hope this is clear. एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर एक बार लॉक वाला फंक्शन बता दो। अभी आ रहे हैं, आगे आते हैं। लॉग भी है, ओके। लॉग भी आता है, लॉग भी आएगा और आई लॉग भी आएगा। Okay, the next slide. See, you asked log of 7. 7 मतलब इसकी लोकेशन, मार्क्स 7 की लोकेशन। एंड बेसिकली अगर हम ये पूछना चाहें कि व्हाट इज ऑन लोकेशन 7, this is one stu.log7. So on log7 there is only marks that is 7, and when I use ilog actually जो है this is internal location is like this is 2, 0 1 and 2। अगर मुझे ये एलिमेंट ही यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ilog यूज करूंगा तो इट शुड बी एक्चुअल जो लोकेशन है वो देनी पड़ेगी, एक्चुअल इंडेक्स देनी पड़ेगी, दैट इज 0 1 2। सो हियर दिस इज ilog 2, एंड अगर लॉक यूज करूंगा तो लोकेशन जो भी इंडेक्स आपने दी हुई है उस लोकेशन को मैं यूज करूंगा। ओके, सो सी हियर, so this is, if you use ilog or log7, this is ilog 2 0 1 2, it will give you j from this, and the value, marks value is 7। so log7 और ilog7 दोनों ही एक चीज है, यानी when you give the index customized index, then it will use log, and when you want to use the actual index, then you will have to use ilog। क्लियर आकांक्षा? यस सर। लॉग का मतलब हो गया जो इंडेक्स आपने रीनेम किया है, कस्टमाइज इंडेक्स दी है, वो आप यूज करेंगे, और एक्चुअल इंडेक्स जो है, बिकॉज इनकी जो एक्चुअल इंडेक्स है वो तो 0 1 2 3 है ना, और जो आपने कस्टमाइज करके दी है वो 5 6 7 8 है। यहाँ पर 1 2 3 4 है, और नेक्स्ट टाइम पर हमने दे दिए 5 6 7 8, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर जो है ये लॉग एंड 0 1 2 3 इज आई लॉग। ओके, यस सर। देन आ जाइए यहाँ पर, अगर हम कहते हैं stu, stu is what, stu is your data frame, एंड उस पर नेम क्या लेके आते हैं, तो नेम आपका वही आता है, यानी इंडेक्स तो आपकी 5 6 7 8 आ गई, एंड नेम जो है कॉलम आपका पूरा, क्योंकि आपने एस नेम ही कॉल किया है, तो एस नेम की जो वैल्यूज हैं विद इंडेक्स केवल और केवल आपका कॉलम नेम ही आएगा, along with the customized index of rows। अगर हमने ऐसा किया तो, यानी हमने stu नेम प्रिंट कराया, एस नेम प्रिंट कराया, जैसे कि अभी हम चाहें तो इस पे देखते हैं, अपने प्रोग्राम पर देखते हैं, हमारी जो लॉक है
df डॉट लॉक, मैं यहाँ पर लेता हूँ 3, df डॉट लॉक 3 df log 3 is giving you Raj 11. ओके और अगर मैं कहूँ df डॉट आई लॉग, राज के लिए मुझे क्या यूज करना होगा 0 1 2, सो आई विल हैव टू यूज 2, तब भी वही आएगी। तो जो इंटरनल आपकी इंडेक्स है वो आई लॉग से आएगी और जो कस्टमाइज इंडेक्स है वो आपके लॉग से आ जाएगी। ठीक है, देन अगर मैं कहूं कि df नेम से क्या है ये, इस नेम तो ये आपको उस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम से जो फील्ड आप मेंशन करेंगे, जो कि आप मेंशन करेंगे, उस कॉलम की वैल्यूज आपके आ जाएंगे। और उसके साथ साथ जो इंडेक्स आपने कस्टमाइज इंडेक्स लिए हुए हैं वो इंडेक्स यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि आपने इंडेक्स ऑलरेडी कस्टमाइज किए हुए हैं। इसको चेंज कर देता हूं मैं 5 6 7 8 df डॉट मी लेना था ना, तो दिस इज मी। और इसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे df भी प्रिंट कराना है। तो df प्रिंट कराने के लिए क्या करूं, तो ये आपकी जो आपने इंडेक्स बदली अभी बदली हैं वो फिर ये हो जाएंगी। ओके, अगर मैं एक्चुअल इंडेक्स निकालना चाहता हूं तो आई लॉक यूज करूंगा, और जो कस्टमाइज इंडेक्स होगी उसके लिए मैं लॉक यूज करूंगा। अभी मैंने फिर चेंज कर दी है, तो अगर मैं ये प्रिंट करना चाहूं तो कर सकता हूं। ठीक है ना, df डॉट लॉक 8
और अगर मैं ये कह दूं जो है ही नहीं, कहीं बाद में ऐसा हो, क्या एरर आने वाली है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, तो इसलिए जो एक्चुअल जो कस्टमाइज इंडेक्स है या जो एक्चुअल इंडेक्स है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर इंडेक्स देनी पड़ेगी। अगर आई लॉग मैं यूज करूंगा तो आई लॉग इसकी लॉग क्या होगी 3, आई लॉग 3 and this is the last element. Hope this slide is clear. Yes, sir. Yes, sir. तो ये the same is given here. बिल्कुल वही चीज है कि इसके अंदर हमने दो कीज ली हुई हैं, एक एस नेम के लिए लिया हुआ है और एक एम के एस के लिए लिया हुआ है। तो एस नेम के अंदर आपके हैं एमी राज जय एंड काज, एंड एम के एस की जो वैल्यूज हैं वो 10 9 7 8 हैं। और अगर आपने इंडेक्स लिए हुए हैं 5 6 7 8 जो कस्टमाइज हैं, ठीक है, तो STU is the data frame created by this statement, and here you are taking name, so along with the location आपके नेम्स की लिस्ट आ जाती है। अगर आप मार्क्स ही देते हैं तो आपकी मार्क्स की लिस्ट आ जाएगी MKS, एंड अगर आप log 6 करते हैं तो what is log 6? This is Raj, so it will give you Raj and its marks जो भी है। और अगर आई लॉग 2 करते हैं तो आई लॉग का 2 का मतलब हो गया जय 0 1 2। सो दिस इज द क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ लॉग एंड आई लॉग। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इट माइट हेल्प यू, अदरवाइज मेरे ख्याल से समझ में तो आ गया होगा। जब आप लोगों की आवाज नहीं आती है ना तो ऐसा लगता है कि या तो सर क्या आ गया? मैं टीम से आउट हो गया या मैं सर वो आप पढ़ा रहे होते हैं इसलिए नहीं बोलते। सॉरी क्या चीज बोला? सर आप पढ़ा रहे होते हैं इसलिए नहीं बोलते हम लोग। नहीं नहीं, मुझे ऐसा डाउट होता है because what is going on, actual streaming is going on, live streaming is going on, and that is why I hardly I would not like to come to uh, on this meet screen, because on this meet screen you people are here and on this screen nothing else is there, and the Python pandas is on slide, Python pandas and data frame is in Jupyter. सो अगर आप वहां से एक दो वर्ड बोलते रहेंगे ना तो मुझे ये रहेगा कि यस यू आर देयर, अदरवाइज यू आर नॉट देयर। सो टुडे I'll wind up here, and Bhupender, Yes, sir. Yes, sir.
ये आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं क्योंकि जोपाइडो तो आपने डाउनलोड कर लिया है। हाँ रंज मेरे चल रहे हैं। चल रहे हैं। रंजीत, रंजीत आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा। मैं यस सर। मैं अभी वहाँ पर हूँ, मतलब असेसिंग डेटा अच्छा, से गया था मैं कल। बिकॉज मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कल कल तो नहीं, मंडे वेडनेसडे तक जो है हम अपनी ये पांडास खत्म करके डेटा विजुलाइजेशन में पहुंच जाएंगे, और नेक्स्ट वीक में हम अपनी डेटा विजुलाइजेशन भी खत्म कर लेंगे। तो आपका जो सर मेरा आईडी भी वर्क क्यों नहीं करता? है, सॉरी। सर वो सर जो पाइथन है इसमें खुल ही नहीं रहा है। मैं नोटबुक भी डाउनलोड थी, वो भी नहीं खुल रही। सर ओके, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। तो डोंट यू वरी यार, यू यू गो टू आईडीएलई, देयर यू कैन डू इट। आईडीएलई में कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है।